public address. ठीक है, तो anyone can tell me what is the need of the public address? What is the need of the public address? Okay, any other answer? Any other answer? बोलो, कोई दूसरा बोल सकते हो? अलग अलग लोकेशन के लिए सर, हाँ, एक लोकेशन से अलग लोकेशन जाने के लिए। देवेंद्र बोलिए। माना देवेंद्र बोलो। सुमित, सुमित, नो। ओके, कुतुबुद्दीन। सर हाँ बोलो। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल जो लोग हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी या मिलिट्री में नहीं है, वो उनको इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक एड्रेसेस मिलता है। What is the need of the private address? प्राइवेट एड्रेस सिक्योरिटी के लिए। हाँ, और एक सर, और एक प्राइवेट एड्रेस में क्या होता है, मतलब एक पर्टिकुलर मतलब नेटवर्क के अंदर ही हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। what is the need of private address? What is the need of private address? सर सिक्योरिटी रीजन के लिए। सिक्योरिटी रीजन के लिए हम प्राइवेट एड्रेस यूज करते हैं। Basically, we are using locally. सर लैंड के लिए To develop any kind of local area network. हाँ सर, लैंड आप के जब एक लोकल एरिया नेटवर्क डेवलप करते हो, कोई एक ऑफिशियल पर्पज के लिए, घर के लिए, या कोई भी जगह पर आप एक लोकल एरिया नेटवर्क डेवलप करते हो, then mostly or everywhere we must have to use the private addresses. Yes or no? Any यस सर। local area network, if you are developing, then it requires the private addresses. But when one local area network wants to communicate with one another local area network, two different LANs, then in that condition you must have to go through the public addresses. Okay, so now as here, this is a very common topology, very small topology. Now you can see in this topology I have designed two local area network. One is connected with router 1 and another is connected with the router 2. This one is the router 2 and it is connected. तो जितना सारा हमारा लोकल एरिया नेटवर्क एक्चुअली होता है, जितना सारे यूजर्स यहाँ पर है, they must have to configure with the help of this address, and this is a kind of your private addresses. So in packet tracer we are using any kind of addresses. You can take the local private address, you can take the help of the public address, there is no issue. But when we are coming, when we are talking about the real environment, actually these networks जो कि आपका local area network है, that are configured with the private addresses and the two number of local area network. So now you can see this is one local area network and this is one another local area network. So this two number of local area network can communicate via through the help of what? Through the help of the public networks or the public addresses. Okay. So all of you know very well that what are the addresses which are belongs from the private range. तो IPv4 का प्राइवेट नेटवर्क क्या क्या होता है? ये जस्ट एक रिवीजन, नेट करने से पहले ये एक रिवीजन है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से क्लासेस वगैरह ऑफ किए थे। तो नेट करने से पहले आपको प्राइवेट एंड पब्लिक एड्रेस जो है उसका पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, अदरवाइज आप नेट का कोई मतलब ही नहीं है। नेट इज अ ट्रांसलेशन प्रोसेस। ओके, so now tell me what are the ranges, what are the IP addresses, IP address range in IPv4
which are coming under private addresses. 10.0.0.0 to 10.255.255.255 ये प्राइवेट This के is लिए for यूज होता है class सर A. क्लास ए और क्लास Yes. बी में सर 172.16.0.0 टू 172.31.0.0 ये क्लास बी का क्लास सी में सर Again, repeat the 192.168.0.0 class B address. जी सर Again, repeat the class B private address. क्लास बी का 172.16.0.0 टू Yes. 172.31.0.0 Yes, fine. सर वो Then for class C, 255 क्लास सी का सर 192.168.0.0 टू 192.168.0.255 okay. So these are the different kind of addresses in different classes, which we are saying that are your what? That are your private addresses. Except the private addresses, if we are using any other address, that is what? That is known as a public address. Okay. So now, what is the need of the NAT? Okay. So anyone can tell me ये जो private address and public address जो आपका define किया गया था, ये define कौन किया था? उसका derivation कौन किया था? ISP आईना ने किया था. आईना याद आ रहा है? आईना। स्टार्टिंग में हम लोग आईना पढ़े थे. ठीक है. तो ये जो प्राइवेट एड्रेस एंड पब्लिक एड्रेस का डेरिवेशन किया गया था, उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया था. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों किया गया? वेरी गुड. हमारा जो टोटल IPv4 एड्रेसेस है 4.29 बिलियंस और 429 करोड़ नंबर ऑफ IP एड्रेसेस है. अगर हम रियली देखेंगे, इट इज वेरी शॉर्टेस्ट टू इम्प्लीमेंट द होल टोटल नेटवर्क इन ऑल ओवर वर्ल्ड. इसलिए आईना ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक निकाला था. उसमें से एक टेक्निक यही था कि IP एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. वन इज योर पब्लिक एड्रेस, अनदर इज योर व्हाट? अनदर इज द प्राइवेट एड्रेस. यही था ना? इसका बैकएंड में रीजन क्या है? बैकएंड में रीजन यही था कि आपका जो IP एड्रेस है, IP एड्रेस का शॉर्टेज ना हो. राइट. तो आईना ने ऐसा और क्या टेक्निक निकाला था IP एड्रेस का जो यूज को और थोड़ा कम करने के लिए? VLSM. Aina has implemented the technology of VLSM. Very good. Or any other thing? One is your IP address का different types of classification किया गया था. Private address, public address, class A, class B, class C, different. सर ये और डी के लिए अलग रेंज रहता था. No, okay, so that is the classification IP addresses. उसके बाद VLSM का प्रोसेस निकाला गया था. सबनेटिंग आपका जो था VLSM या FLSM का प्रोसेस को आईना ने डिराइव किया था. तो like in the similar manner, actually, when one private network want to communicate with one another network, see the topology carefully. When one private network want to communicate with one another network, okay, actually no private addresses. यहाँ पर ये जो PC है, ये जो यूजर है, उसका एड्रेस कौन सा टाइप का एड्रेस होगा? उसका जो एड्रेस है वो कौन सा टाइप का एड्रेस है? इज इट प्राइवेट, प्राइवेट और पब्लिक? उसका जो एड्रेस होगा वो कौन सा टाइप का एड्रेस होगा? इट इज ए प्राइवेट एड्रेस. ओके. सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग. आपका कोई भी प्राइवेट एड्रेस दूसरा नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता. हम लोग पैकेट ट्रेसर में करते हैं, दैट इज फाइन. बट इन द रियल एनवायरमेंट कोई भी प्राइवेट एड्रेस आपका पब्लिक नेटवर्क के थ्रू से ना, यहाँ पर जो कनेक्टिविटी हुआ है राउटर टू राउटर, ये कनेक्टिविटी एक्चुअली हमको प्रोवाइड कौन किया है? दैट कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड बाय योर ISP. एनी ISP, कोई ISP के थ्रू से हमको ये कनेक्शन मिला है जो कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से. ओके. तो ISP जब भी हमको IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा, दैट IP एड्रेस कौन सा टाइप का IP एड्रेस होगा? दैट IP इज ए काइंड ऑफ पब्लिक एड्रेस. ये एड्रेस आपका कौन सा टाइप का एड्रेस होगा? पब्लिक एड्रेस. तो आप जब एक प्राइवेट नेटवर्क से कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हो कोई डिफरेंट नेटवर्क को, एनी डिफरेंट नेटवर्क को, तो आपका जो इंफॉर्मेशन से जो पैकेट है वो पैकेट आपका एक पब्लिक एड्रेस के थ्रू से आगे फॉरवर्ड होगा. क्लियर?
Yes, sir. में आ रहा है? हाँ सर। तो इसका मतलब यही हुआ कि any private addresses, if they want to communicate with any other network, then in that condition it needs a public address. Without public address, no private address can communicate to the outsides. Clear? क्लियर। समझ में आया? ठीक है, तो अभी देखो, सपोज इनसाइड वन ऑर्गेनाइजेशन इफ देयर आर 50 नंबर ऑफ यूजर्स आर देयर, अगर यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 यूजर है, ठीक है, एक पीसी का इंफॉर्मेशन को आगे ट्रैवल करने के लिए यू नीड व्हाट, यू नीड वन पब्लिक एड्रेस. सपोज नाउ दिस पीसी एड्रेस इज द 10.0.0.2. ओके, if this user want to communicate or if this user want to access this server, ये सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, तो पहले उसको क्या चाहिए ना, इट थ्रू द हेल्प ऑफ वन पब्लिक एड्रेस, एक पब्लिक एड्रेस के थ्रू से वो सर्वर के साथ कनेक्टेड हो सकता है. ठीक है, तो सेकंड पीसी के लिए आपको क्या चाहिए, और एक पब्लिक एड्रेस चाहिए. थर्ड पीसी के लिए आपको क्या चाहिए, और एक पब्लिक एड्रेस चाहिए. अगर हर एक पीसी एक एक पब्लिक एड्रेस आपका यूज करेगा, ठीक है, देन ये जो पब्लिक एड्रेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन तो आपका सारा पब्लिक एड्रेस को यूज कर सकता है. ये सर नो? यस सर. अगर हम लोग पब्लिक एड्रेस एक एक प्राइवेट एड्रेस के लिए एक पब्लिक एड्रेस ट्रांसफर करने के लिए, देन अल्टीमेटली आप बोल सकते हो क्या ना, आपका एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, सपोज मान लीजिए कि इन्फोसिस इज देयर, विप्रो इज देयर, बहुत सारा बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एमएनसी ऑर्गेनाइजेशन से, वहां पर में भी आपका 10,000 20,000 5 लाख यूजर्स हो सकता है. तो अगर हर एक यूजर एक एक पब्लिक एड्रेस यूज करेगा, देन पब्लिक एड्रेस तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. आईना ने क्या एश्योरेंस दिया था, आईना ने क्या एश्योरेंस दिया था? 20 साल तक अभी चलेगा. We have sufficient number of addresses so that you can use the network flexibility up to next 15 to 20 years. यही था ना आईना का कंसेप्ट? हाँ यस सर. ठीक है, सो फॉर दैट रीजन अगेन ये जो आईपी एड्रेस देखो, अगर हर एक यूजर एक एक पब्लिक एड्रेस यूज करेगा, एक प्राइवेट एड्रेस यूज करेगा, प्राइवेट एड्रेस के लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पब्लिक एड्रेस अगर खत्म हो जाएगा, देन आप बाहर का नेटवर्क के साथ और कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता है. सो फॉर दैट रीजन द आईना हैज come with a new concept. That concept is known as what? That is known as the NAT process, network address translations. Clear? यस सर. समझ में आया? यस सर. तो ये जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशंस क्या है, अभी तक मैंने जैसे कि आपको बोला था, any private IPv4 addresses cannot communicate or cannot be routed any packet over the internet. Okay, so for that reason each private network or each private addresses needs what? It needs the public addresses. Okay, ठीक है. so for that reason ये जो प्राइवेट एड्रेस एंड पब्लिक एड्रेस एक दूसरे के साथ मैच करके आपका पैकेट को फॉरवर्ड करेंगे, उस प्रोसेस को बोला जाता है आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस. हाँ सर. ओके, तो जस्ट रीड इट आउट. यहाँ पर आपका जो दिया गया है, सर और एक बार रिपीट कीजिए. हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ. अगर आपका ये टोपोलॉजी साइड में भी दिया गया, आप देख सकते हो. अगर कोई प्राइवेट नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होना चाहता है, देन आप, या कोई बाहर का सर्वर के साथ कनेक्टेड होना चाहता है, देन एक्चुअली आपको चाहिए क्या ना, यू नीड व्हाट, यू नीड द पब्लिक एड्रेसेस. ओके, तो आप पैकेट अभी सेंड कहां से कर रहे हो, एक प्राइवेट एड्रेस से आप पैकेट सेंड कर रहे हो. देखो यहाँ पर जो एड्रेस है, जैसे कि 192.168.10.10. ओके, आप एक प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू से पैकेट सेंड कर रहे हो, लेकिन ये पैकेट जब आपका ओरिजिनल राउटर के पास आएगा, राउटर का काम क्या होगा ना, ये पैकेट को और ये जो एड्रेस को ट्रांसलेशन करेगा. ट्रांसलेशन किसको करेगा ना, एक पब्लिक एड्रेस को ट्रांसलेट करेगा. दैट इज द यूज ऑफ योर नेट. जब आपका सर्वर पैकेट सेंड करेगा, रिप्लाई सेंड करेगा, देन ये रिप्लाई सेंड करेगा एक पब्लिक एड्रेस के थ्रू से, बट आपका इंटरनल नेटवर्क को क्या होना चाहिए ना, द इंटरनेट नेटवर्क शुड बी गेट द इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग द सेम एड्रेसेस. यही एड्रेस के थ्रू से उसको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए. ओके, तो ये जो प्रोसेस आपका चेंज हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज योर ट्रांसलेशन प्रोसेस.
Is it clear? The conversion of private address to public address and again public address to private address. The conversion of public address to private address and private address to public address. Okay. This process is known as your NAT process, Network Address Translations. प्राइवेट एड्रेस को बाहर का नेटवर्क अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है, इसलिए उसको अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए हमको एक पब्लिक एड्रेस का जरूरत है। तो ये पब्लिक एड्रेस, ये जो कन्वर्सेशन है, वो कन्वर्सेशन का काम किसका है? दैट इज द वर्क ऑफ द राउटर्स, दैट इज द वर्क ऑफ द लेयर 3 डिवाइसेस। क्लियर? Yes, sir. Okay, so now you can just read it, the second paragraph. The NAT process, network address translation process, allows networks to use private IPv4 addresses internally and translate them to a public address when it is needed. That means जब आप बाहर का नेटवर्क के साथ कनेक्टेड करना चाहते हो, then आपका ये क्या करेगा? NAT process उसको ट्रांसलेट करने में हेल्प करेगा। क्लियर? हाँ सर। समझ में आया? डाउट है तो बोलो। नो सर, ओके। ओके जो? यस सर। So now I'm coming again to the topology here. As you know, this is our local area network. Okay, so this local area network, we can say this is our inside network. आप जो यूजर हो, now you are sitting here, okay, but you want to access to the server. So this is for me right now, this area is the destination, which is the outside network for me. यही तो हम लोग यही चीज ऑलरेडी ACL में भी किया था। This is our internal network, जिसको हम सोर्स बोलते हैं, एंड जिसको हम एक्सेस करेंगे दैट इज द आउटसाइड नेटवर्क फॉर अस, जिसको हम डेस्टिनेशन बोलेंगे। यही था हमारा कंसेप्ट ACL में भी। या कोई भी नेटवर्क में एक सोर्स रहेगा और एक क्या रहेगा? आपका डेस्टिनेशन। ये सर ना, ठीक है? सुनो, इन केस ऑफ योर NAT प्रोसेस, आपका ये जो NAT का प्रोसेस है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, ये NAT प्रोसेस में आपको ओनली 4 डिफरेंट न्यू वर्ड्स, न्यू टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है? क्या क्या है वो टर्मिनोलॉजी, आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लो। One is known as the inside local address. Just note it down. आपका कॉपी अगर है पास में तो उसको आप नोट डाउन करके रखो। These are the NAT terms. You have to just remember these 4 terms here. One address is known as your inside local address. One another is known as your inside global address. हाँ बोलो। And one another is known as the outside local address, and another is known as your outside global address. आपके पास कॉपी है तो ये 4 टर्म को थोड़ा सा नोट डाउन करके रखो, जिसको मैं भी एक्सप्लेन करने के लिए जाऊंगा। Complete? 1 minute, sir. यस सर। One is inside local address, another is inside global address, outside local address, and outside global address. सर ऊपर में क्या लिखा है? नेट। NAT terms. NAT terms. Clear? हाँ सर। Okay. So now try to understand what are the 4 things. Okay. So one is inside local address. One is your what? One is the inside local address. So now local address किसको बोलेंगे? लोकल एड्रेस हम किसको बोलेंगे? रिपीट कीजिएगा, आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है। इन ए लैन
एक लैन के अंदर जो कनेक्ट रहेगा। जो लैन के अंदर कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलेंगे? लोकल एड्रेस बोलेंगे। तो यहाँ पर Yes, मेरे sir. पास Local कितना लैन है? लैन, 2 लैन सर। 2 लैन्स है, ठीक है। एक है मेरा खुद का नेटवर्क का और एक है मेरा डेस्टिनेशन नेटवर्क का। यस सर। समझ में आया? तो डेस्टिनेशन नेटवर्क में जो आपका लैन कनेक्टेड है, डेस्टिनेशन नेटवर्क में जो आपका लैन कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज द आउटसाइड लोकल एड्रेस। क्लियर? डेस्टिनेशन साइड में जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज द आउटसाइड लोकल एड्रेस। क्लियर? क्लियर। अच्छा, जो मेरा खुद का नेटवर्क है एंड यहाँ पर जो लैन कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज योर इनसाइड लोकल एड्रेस। दिस इज नोन एज योर इनसाइड लोकल एड्रेस। तो यहाँ पर जितना सारा भी आपका एड्रेसेस रहेगा, ठीक है, दिस ऑल आर नोन एज द इनसाइड लोकल एड्रेसेस। हाँ सर। Okay. So now come one another word that is known as the inside global address. Inside global address. ठीक है ना? Inside global address second one. तो यहाँ पर ग्लोबल एड्रेस कौन सा है? What the meaning of global address? What the meaning of global address? हम लोग जो पब्लिक एड्रेस यूज करते हैं, ठीक है, दैट पब्लिक एड्रेस इज नोन एज योर ग्लोबल एड्रेस। हमको आईएसपी के थ्रू से जो एड्रेस यहाँ पर मिला है उस एड्रेस को नॉर्मली पब्लिक एड्रेस बोलते हैं। यस और नो? हाँ सर। यस। इसी सेम एड्रेस को हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज योर ग्लोबल एड्रेस। उसको ग्लोबल एड्रेस क्यों बोला जाता है? बिकॉज ओनली थ्रू द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस, जो कि हमको आईएसपी के थ्रू से मिला है, ओनली थ्रू द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस we can only able to communicate with the global network, entire network in the world. That's why this address is known as the global address. Clear? यस सर। समझ में आया? यस सर। तो नाउ अभी आपका नेटवर्क के साथ आपको जो एड्रेस मिला है, जो एड्रेस ये राउटर जो एड्रेस के थ्रू से अभी कनेक्टेड हुआ है, आपको जो आईएसपी ने जो एड्रेस दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है, दैट एड्रेस इज योर 150.0.0.1, ओके, और दिस इज योर 150.0.0.2, राइट? ओके, तो नाउ ये जो 150.0.0.1 का एड्रेस है, ये एड्रेस मुझे कहाँ से मिला है? आईएसपी थ्रू। आईएसपी के थ्रू से मुझे मिला है, यानी आईएसपी के थ्रू से मुझे मिला है। तो ये जो आईएसपी ने मुझे एड्रेस दिया है, ये कौन सा एड्रेस है? ग्लोबल एड्रेस। Is it connected towards the source or it is connected towards the destination? मेरे लिए ये जो एड्रेस है, ये मेरा सोर्स के साथ कनेक्टेड है या डेस्टिनेशन के साथ कनेक्टेड है? सोर्स के साथ। This is the network. 150 is the network, but actually the address जो कि मुझे मिला है that is 150.0.0.1. तो इसलिए ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस को हम क्या बोलेंगे ना? दिस इज नोन एज द इनसाइड ग्लोबल एड्रेस। क्लियर? ये एक ग्लोबल एड्रेस है, बट मैं उसको क्या बोलूंगा? दैट इज नोन एज द इनसाइड ग्लोबल एड्रेस। इनसाइड में क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज दिस एड्रेस इज कनेक्टेड टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स द सोर्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इनसाइड ग्लोबल। क्लियर? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इसी सेम तरीके से 150.0.0.2 जो है, दैट इज नोन एज योर आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस। इस एड्रेस को मैं क्या बोल सकता हूं? दिस इज नोन एज योर आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस। क्लियर? यस सर। हाँ सर। तो नाउ जस्ट मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं। सपोज नाउ यू आर द यूजर, आप यहां पर बैठे हो, दिस वन, यू आर द यूजर, ठीक है? आपके लिए इनसाइड लोकल एड्रेस कौन सा होगा? डेस्टिनेशन वाला। डेस्टिनेशन। So now this is the inside local address,
आपके लिए इनसाइड ग्लोबल एड्रेस कौन सा होगा? 15.0.0. 150.0.0.2 इनसाइड ग्लोबल एड्रेस. लाइक इन द सिमिलर मैनर, अगर दिस साइड विल बी योर डेस्टिनेशन, अगर ये साइड आपका डेस्टिनेशन होता है, देन आपका टर्म्स थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Clear? Yes, sir. So these are the 4 terms actually you have to remember in the NAT processes. क्यों रिमेम्बर करने का जरूरत है? क्यों जरूरत है? बिकॉज हम लोग लोकल एड्रेस, यहाँ पर प्राइवेट एड्रेस से कोई भी अगर कम्युनिकेट करेंगे वो आपका बाहर का नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट हो पाएगा ओनली बाय यूजिंग ग्लोबल एड्रेसेस, जो कि हमारे लिए इनसाइड ग्लोबल एड्रेस. समझ में आया कि नहीं? हाँ सर. क्लियर? तो Yes sir, clear. ओके. तो नाउ मैं थोड़ा सा और एक बार पीपीटी जा रहा हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हो. ओके. दीज आर, वन इज द इनसाइड लोकल एड्रेस, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कशन कर चुका हूँ एज पर माई टोपोलॉजी. अनदर इज द इनसाइड ग्लोबल एड्रेस, अनदर इज द आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस एंड अनदर इज द. कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है. क्यों? कौन किसको सुनाई नहीं दे रहा है? अरे मेरा वॉइस सबको सुनाई दे रहा है? तो सर ঠিকঠাকই আছে স্যার কাছে কিন্তু মাঝে মাঝে ব্রেক করে যাচ্ছে. सुना दे रहा है सर, क्लियरली सुना दे रहा नेटवर्क थोड़ा सा डाउन रहने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. और इन्हीं শোনা যাচ্ছে স্যার. है. हाँ मुझे क्लियरली सुना दे रहा है सर. ओके. तो नाउ ये 4 चीज समझ में आ गया सबको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइड लोकल एड्रेस, इनसाइड ग्लोबल एड्रेस, आउटसाइड लोकल एड्रेस एंड आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस. या कुछ डाउट है? Yes sir, clear. Clear, sir. क्लियर? तो Yes, sir. Yes, sir. Yes. सो नाउ अभी हम लोग जाएंगे एक्चुअली ये जो न्याट का प्रोसेस है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, वो आपका ऑपरेट कैसे होता है राउटर. सो न्याट प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए ये जो ट्रांसलेशन का काम है वो किसका है? ट्रांसलेशन का काम किसका है? दैट इज द वर्क ऑफ द लेयर 3 डिवाइसेस. लेयर 3 डिवाइसेस, नॉट ओनली राउटर्स. आपका मल्टी लेयर स्विच भी हो सकता है. Multi-layer switch. Yes, sir. मल्टी लेयर स्विच भी हो सकता है. एनी लेयर 3 डिवाइसेस. बट हियर वी हैव टेकन वन राउटर. सो हम लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जो आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक एड्रेस में कन्वर्ट करना, अगेन पब्लिक एड्रेस को प्राइवेट एड्रेस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, जो आपका काम है, दैट विल बी कंप्लीटेड बाय दिस राउटर ओनली. वो राउटर के थ्रू से आपका कंप्लीट होगा. ठीक है? ओके. बट ये जो न्याट प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा, हर एक पीसी यहाँ पर आपका लोकल एरिया नेटवर्क में जितना सारा यूजर्स है, अगर सारा यूजर्स चाहता है कि तुम्हारा सर्वर को कनेक्टेड करने के लिए, क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड कंडीशन. यहाँ पर जितना सारा यूजर्स कनेक्टेड है, अगर सारा यूजर्स चाहता है कि आपका सर्वर के साथ कनेक्टेड होने के लिए, तो आपको यहाँ पर कितना पब्लिक एड्रेस का जरूरत है जिसके थ्रू से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं? बोलो, टोपोलॉजी देख के बोलो. एक सर. एक एड्रेस सर. सपोज मान लीजिए नाउ आप क्या करते हो ना, आप एक मिंगल में बात करते हो, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो हाँ. एंड आपके सामने और एक कोई एक दूसरा मराठी पर्सन है, यानी मराठी पर्सन है. ओके. तो आप अगर बोलोगे उसको कुछ आप इनवाइट कर रहे हो, बट क्या नहीं अंडरस्टैंड? No sir. नहीं. क्या नहीं अंडरस्टैंड? नहीं. ठीक है. सपोज मान लीजिए वो पर्सन आप हो, तो आपका बात को ट्रांसलेशन करने के लिए आपको एक पर्सन का जरूरत है. Yes, sir. हाँ. सपोज मान लीजिए यहाँ पर मेरा और एक पर्सन है, तुम्हारा और एक दोस्त यहाँ पर प्रेजेंट है, वो भी कुछ बोल रहा है, तो उसके लिए क्या आपको और एक पर्सन लेने का जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? या वही एक पर्सन से अपना काम हो जाएगा? पर्सन से तो हो जाएगा. हैं? जब एक पर्सन आपका बात को ट्रांसलेट कर रहा है, देन वो सेकंड पर्सन का बात को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर सर वो सर कैपिटल हो सकता है. एट ए टाइम तो वो तो एक ही At a time पर्सन से तो बात करेगा. उसका मतलब क्या हुआ? एट ए टाइम ये क्या कंप्लीट, ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है? नहीं. No, sir.
नहीं हो सकता है। तो अगर आप एक का बात कंप्लीट होगा उसके बाद और एक का बात कंप्लीट होगा, देन इट विल बी ए बिग प्रोसेस। दैट मींस आप अगर सर्वर को एक्सेस करना चाहते हो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? ट्रैफिक जाने के बाद। ये सर नो, हाँ Yes, sir. ठीक है। सो फॉर दैट रीजन ये जो आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, आपका राउटर जो ट्रांसलेट करेगा प्राइवेट एड्रेस से पब्लिक एड्रेस को ट्रांसलेट करेगा, ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस एक्चुअली आपका 3 टाइप का है। समझ में आ रहा है? ट्रांसलेशन का प्रोसेस कितने टाइप का है? टाइप्स ऑफ नेट। कितना तरीके से वो आपका प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक एड्रेस में ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज द टाइप्स ऑफ नेट। सो ये जो आपका प्रोसेस है वो प्रोसेस आपका 3 टाइप का है। वन इज नोन एज द स्टैटिक नेट, वन इज नोन एज व्हाट, वन इज नोन एज द स्टैटिक नेट, ओके। तो एवरीबॉडी यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टैटिक प्रोसेस? सबको स्टैटिक प्रोसेस के बारे में पता है? स्टैटिक प्रोसेस Yes, क्या sir. होता है? यस सर। Yes. स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? तो अलग से हम लोग जो कॉन्फ़िगर करते हैं, हाँ, अलग से हम लोग जो मतलब कॉन्फ़िगर करते हैं मैन्युअली, अलग से माने मतलब मैन्युअली जो करते हैं, ऑटोमेटिक नहीं। मैनुअली जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसको बोला था स्टैटिक Yes, sir. प्रोसेस, ठीक है। Yes, sir. तो हमारा जो पहला प्रोसेस है वन इज नोन एज स्टैटिक नेट। दीज आर द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेट। एक्चुअली नेट का टाइप्स है। वन इज नोन एज द स्टैटिक नेट। फर्स्ट विल बी डिस्कस अबाउट द स्टैटिक नेट। उसके बाद देयर इज वन अनदर टाइप ऑफ कन्वर्सेशन इज देयर, जो कि आपका प्राइवेट एड्रेस एंड पब्लिक एड्रेस के बीच में आपका ट्रांसलेट हो सकता है। दैट इज अनदर इज नोन एज द डायनामिक नेट, ओके। देन द थर्ड वन इज योर फैट, ओके। नेट यू नो that is known as your network address translation. One is the static process, another is the dynamic process, but the third one is your PAT. PAT is stands for port address translation. PAT क्या है? Port address translation. Stands for your port address translation. Okay, so you for अभी के लिए आप ये dynamic net and PAT को भूल जाओ। पहले हम डिस्कशन करेंगे what is the meaning of the static net. Okay, तो in case of the static net actually होता क्या है? ईच एंड एवरी पीसी, जितना सर आपका पीसी है, सारा पीसी, सारा होस्ट का इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करने के लिए यू नीड वन पब्लिक एड्रेस। आपको क्या चाहिए? पब्लिक एड्रेस। यू नीड वन पब्लिक एड्रेस। आपको एक पब्लिक एड्रेस, हर एक पीसी के लिए एक पब्लिक एड्रेस चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। तो सपोज मान लो कि आप आईएसपी से एक कनेक्शन लाया है। जब आईएसपी से आप कनेक्शन लाते हो, आईएसपी आपको कितना एड्रेस प्रोवाइड करेगा? एक नेटवर्क, एक ही एड्रेस आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है कि नहीं? Yes, sir. बट आपका यहाँ पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या बोल रहा है? ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या बोल रहा है? आपका जितना सारा पीसेज है, जितना सारा होस्ट है, सारा होस्ट के लिए आपको एक पब्लिक एड्रेस का जरूरत है। सारा होस्ट के लिए आपको एक पब्लिक एड्रेस का जरूरत है। क्लियर? यस सर। हाँ सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो उसका मतलब यही हुआ, सपोज मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूँ। दिस इज द पीसी नंबर 1, दिस इज योर पीसी नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर पीसी नंबर 3, ठीक है। तो अगर पीसी 1 अभी सर्वर को एक्सेस करना चाहता है रियल एनवायरनमेंट में, देन एक्चुअली आपको क्या चाहिए ना, आपको एक पब्लिक एड्रेस चाहिए। समझ आया? यस सर। फॉर पीसी 1 एक्चुअली यू नीड ए पब्लिक एड्रेस। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सपोज आपको एक पब्लिक एड्रेस चाहिए 150.0.0.2। इसी एड्रेस के थ्रू से 150.0.0.2 या 3 के थ्रू से, ठीक है, आपको पीसी 1 ओनली कम्युनिकेट कर सकता है सर्वर के साथ। हर एक प्राइवेट एड्रेस को ट्रांसलेशन करने के लिए एक पब्लिक एड्रेस का जरूरत होता है। क्लियर? यस सर। ओके। लाइक इन द सिमिलर मैनर, अगर मैं चाहता हूं कि नहीं PC2 भी मेरा कम्युनिकेट करेगा, किसके साथ? ना सर्वर के साथ, देन यू नीड व्हाट? यू नीड वन अनदर एड्रेस। आपको और एक पब्लिक एड्रेस का जरूरत है। समझ में आ रहा है? यस सर।
Like in the similar manner, if you want that PC3, आपका जो PC3 है, 1 minute, suppose you want to communicate, अब PC3 जो है that want to communicate with the server or any other network, then you need one another private address. So just you think, inside my network now, right now I have only 3 number of users, and for this 3 number of users I need 3 public addresses. But ये जो 3 पब्लिक एड्रेस है, 3 पब्लिक एड्रेस आपको कहां से मिलेगा? आईएसपी के थ्रू से मिलेगा। उसका मतलब यही है कि आपका आईएसपी से आपको भी कितना कनेक्शन लेना पड़ेगा? 4 कनेक्शन। कितना कनेक्शन लेना पड़ेगा? 3 के लिए 3 कनेक्शन में एटलीस्ट लेना पड़ेगा। हाँ 3 मोर कनेक्शन लेना पड़ेगा। जब आप घर में एक इंटरनेट का कनेक्शन आप लेते हो कोई भी आईएसपी के थ्रू से, उसका मंथली चार्जेस कितना होता है ना, फ्री में होता है? आप लेते हैं। जब कोई भी आईएसपी से कनेक्शन लेते हैं